Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about the most important questions related to GATE examinations, and this question may asked in GATE 2026. Okay, so let's see the question number 1. Question number 1 say that the minimum number of times a fair coin is needed to be tossed so that the probability of getting at least 2 head is 0.96. Okay, so दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड इन इंग्लिश मीडियम. सो ओके, तो हमें क्या दिया गया है? सो 0.96 दिया गया है एंड बी दी नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स. एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स. आप इस वीडियो को 1.5x से देखना जिससे आप जल्दी सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ. ओके, सो हमें ये क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओ कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी जब गेटिंग एटलीस्ट टू हिट्स, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी. सो हम इसे ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 1. ओके, तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 हमें मिल जाएगा. ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का ऑकरेंस कितना आ जाएगा 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का क्या होता है 1/2. ओके, सो हमें क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स एन एंड एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCX p to the power x q to the power n minus x. Okay, so use this formula in this question and get the result. So p x is greater than equal to 2 क्या होगा 1 minus nc0, n coin is tossed, we don't know, so let's take as n. Okay, and minus nc1 1/2 to the power x is 1/2 to the power n minus x, so n minus 1. Okay, here x is equal to 1, here x is equal to 0, so that's why we didn't that 0. so क्या आ जाएगा हम लोग के पास 1 minus 2 to the power n minus nc1 1/2 to the power n. ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 minus 1 plus n divided by 2 to the power n. फर्दर हम इसे लिख सकते हैं n plus 1 divided by 2 to the power n is less than equal to, because in this question say that, one second, हम इसे लिख सकते हैं 1 minus 1 plus n divided by 2 to the power n is greater than equal to 24 divided by 25. क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1 minus 1 plus n divided by 2 to the power n is greater than equal to 24 divided by 25. क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का कितना प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 0.96. ओके, और ये हमें कितना आ रहा है 1 minus 1 plus 2 to the power n. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. सो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो n plus 1 divided by 2 to the power n is less than equal to 1 divided by 25. एंड इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो n इज इक्वल टू 8 आएगा. सो 8 नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन इज टॉस so that we get the 0.96 as the result. Okay,
The minimum value of n for with above inequality satisfied is n is equal to 8. So 8 is the answer of these questions. Question number 2 says that the marks obtained by a student were found normally distributed with mean is equal to 60 and variance is equal to 25. The percentage of a student who scored more than 65. Okay, so normally distributed. So this question is asked from the probability distribution, okay, concept. So mu is given, mu is equal to 60 and sigma squared, variance is given at 25, so sigma is 5. okay. So हमें क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 65. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन x माइनस म्यू बाई सिग्मा. So probability of x is more than 65. X is 65 minus mu is 60. Mu is 60 divided by sigma is 5. So हमें क्या मिल जाएगा, probability of x is greater than equal to 65 minus 60 is 5. 5 divided by 5 is 1. So हम जब इसे प्लॉट करके देखेंगे, ये क्या होता है हम लोग का, ये यहाँ पे 0 पे म्यू रहता है, इस पे कितना आता है म्यू प्लस सिग्मा एंड दिस इज वन इज म्यू प्लस 2 सिग्मा, दिस वन इज म्यू माइनस सिग्मा, दिस वन इज म्यू माइनस 2 सिग्मा. ओके, म्यू माइनस 2 सिग्मा. And question are asked that mu plus sigma equal greater than equal to 65, mu plus sigma, because if you add the mu plus sigma is 65. So mu plus sigma is 65 and this is greater than. So question are asked that when the percentage of a student who score more than 65, so this area, okay. And we can also write like, just for the variation, once again, this is 1 0 minus 1 2 minus 2. okay. So यहाँ पे probability of 1 हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 minus 0.683 divided by 2. मैं यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा हूँ, क्योंकि -1 से 1 कितना आता है, ये आप याद रख लेना. ये सॉरी, यहाँ पे z लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, z, क्योंकि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा होता है. सॉरी फॉर दिस. 0.6827 and probability of -2 to 2 is 0.9545. okay, 0.9545. so probability of क्वेश्चन में क्या पूछा है, z इज ग्रेटर देन 1. तो z इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब हम probability of इधर 0.5 इधर 0.5, 50% एंड 50% एरिया डिवाइडेड बिटवीन दिस ओरिजिन पॉइंट. ओके, तो 0.5 से हम इसका एरिया, इतना दूर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आगे का एरिया आ जाएगा. तो -1 to 1 में 0.6827 है. 0.6827 को 3 भी लिख सकते हैं, 0.683 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा. ये इतना दूर का एरिया हमें मिल जाएगा, इतना दूर का एरिया. ये -1 से लेके 1 तक में 0.6827 एरिया है. बट जब हम इसका हाफ लेंगे तो मुझे इस यहाँ तक का ही एरिया चाहिए, तो 0.683 डिवाइडेड बाई 2, इसलिए मैंने 0.683 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हूँ. ओके, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.1585, सो कितना परसेंटेज आएगा, 15.85% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says that 3 factories है, the factory A produces twice as many as B produce, while the factory B and C produce in the same quantity.
प्रोड्यूस बी और सी फैक्ट्री बी और सी सेम क्वांटिटी। लेट्स ब्रेक द होल सेंटेंसेस इनटू स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ए बी एंड सी प्रोड्यूसेस 2n n and n because C, B and C are the same number of B and C produces in the same quantity. That's why n and n. We assume n and n. पहले हमारा दिया गया था कि ए बी सी 3 फैक्ट्री है, तो हम लोगों ने इवेंट मान लिया E1 प्रोड्यूस बाई ए, और ये यहाँ पे कह रहा था द फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मेनी ऑफ बी, सो फैक्ट्री ए ट्वाइस है बी के, सो 2n, और फैक्ट्री बी को हम n माने हैं तो फैक्ट्री ए को 2n हो जाएगा। ओके, 2n, इसलिए यहाँ पे 2n मैंने लिखा 2n, और बी एन एंड सी बी ए, यहाँ पे कह रहा है बी एंड सी आर सेम क्वांटिटी, सो बी एन एंड एन इन द सेम क्वांटिटी। तो हम लोगों ने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का इवेंट का निकाला जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट कैसे आएगा, 2n डिवाइडेड बाई टोटल, रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई टोटल, दिस इज द रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, n डिवाइडेड बाई टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सिमिलरली, E2 एंड E3 आर सेम इवेंट, सो दैट्स वाई 1/4 उसके बाद हम लोगों ने निकाला जी कि ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी इवेंट 1 की, तो इवेंट 1 की कितना दिया हुआ है 2%, तो हम लोगों ने वैसा लिखा 2 डिवाइड बाई 100। अब E2 की कितनी आएगी 4, क्योंकि यहाँ पे 4% बोल रहा है ए एंड सी, सॉरी इट इज नोन एज 2% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एज वेल एज सी आर डिफेक्टिव। 2% ए एंड सी है और बी कितना है 4% है, तो डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी 4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइडेड बाई 100, इसका इतना आ जाएगा। एंड E1 की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और E3 की सेम है, सो 1/50 फिर हम लोगों ने पाथ निकाला जो कि ये पाथ से होके जाएगा, जिससे हमें एक रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी पिकअप डिफेक्टिव पीस हमारा आएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई E1 plus probability of E2 into probability of D by E2 plus probability of E3 into probability of D by E3. So when you solve this, put this value from the given, okay, and get the result. So come to the next question. These questions are says that when integrated 0 to pi by 4 sin x plus cos x 9 plus 16 sin 2x dx, what is the solution of this integral? So फर्स्टली व्हेन यू टेक द स्टेप नंबर 1, क्या करना है हम लोग को, पहले आप देख लो साइन 2x दिया हुआ है, तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ओके, और 9 प्लस 16 साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 32 साइन x इंटू कॉस x, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब यहाँ पे लेंगे तो 16 इंटू 2 32 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सिंपल। और स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो हमारा डी टी कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो अब हम इसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, स्टेप 3 में डिनोमिनेटर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हम माने हैं टी, सो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन
एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अब हम इसको ये स्टेप 3 को क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये 9 प्लस 32 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सो 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और 2 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो इसलिए ये 16 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 प्लस 16 इज 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ओके, अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 में हम एट एक्स इजकल टू 0 पुट करके देखते हैं लिमिट। तो की हमारा क्या माने थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन 0 माइनस कॉस 0 कितना आ जाएगा हमारा -1, बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज -1, सो कॉस 0 इज -1। और एट एक्स इजकल टू π/4 ये कितना आएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस देन 1/√2 माइनस 1/√2 तो कितना आ जाएगा 0। ओके, सो हमारा इंटीग्रेशन अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 सॉरी माइनस 1 सेकेंड -1 to 0 dt 25 minus 16 t square, because sin x plus cos x plus sin x dx cos x plus sin x dx is equal to dt। तो यहाँ पे dt हम लोगों ने लिख लिया, और 9 प्लस 16 sin x 2x कितना आ रहा था हमारा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई आई रिटन लाइक दैट। ओके, और एक फॉर्मूला होता है जब डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/2 ln ऑफ ए प्लस बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी टी। ओके, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज इन दिस इंटीग्रल। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ए और बी क्या है 25 एंड 16, सो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 1/40 2 20 1 सेकेंड 25 इंटू 16 ए स्क्वायर 25 5, और ए इजकल टू यहाँ पे 5 आएगा और बी इक्वल टू 4 आएगा, सो 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40। ओके, लिख सकते हैं ln 5 प्लस 40 और 5 माइनस 40। ओके, 0 to -1। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर, जगह कम है तो इसका कितना आएगा ln ऑफ 9, जस्ट आप पुट द वैल्यू करना, ln t इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप पुट करके देखना कितना आएगा 5 प्लस 4 5 5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो ln 1 क्या आएगा 0, और जब हम -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा ln 1/9, सो 1/9 ऊपर ले जाएंगे तो -ln 9, तो इसलिए यहाँ पे -ln 9 और माइनस ऑफ -ln 9 प्लस ln 9, सो ln 9 डिवाइडेड बाई 40, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ln 9 को हम लिख सकते हैं 2ln 3 डिवाइडेड बाई 40,
सो हम इसे लिख सकते हैं ln3 divided by 20. Okay, so this is the answer of this questions. Okay, thank you so much guys for watching this video. If this video is helpful for you, so please like and subscribe these channels. And this is the expected question for GATE 2026.